Hello everyone, we will continue with lichens. In previous lectures we have discussed about general introduction of lichen, its types on the basis of its morphology, on the basis of its habitat, and internal structures of thallus. There is homoisomerous type of thallus and heteroisomerous type of thallus. Our today's learning objectives are we will discuss about specialized structures of thallus, reproduction in lichens, and economic importance of lichens. So let's start. Firstly, specialized structures of thallus. So lichens thallus bear many specialized structures which helps in aeration and asexual reproduction. So first structure is breathing pore. As its name indicate, ये जो breathing pores हैं, these are present on the upper side of thallus और इनका जो function है ये help करते हैं gaseous exchange. So in some foliose lichen हमने पढ़ा था जिसकी अपीयरेंस लीफ की तरह होती है, फॉर एग्जांपल पार्मेलिया. इसकी जो अपर कॉर्टेक्स है दैट इज इंटरप्टेड बाय सम ओपनिंग्स जिसको कहा जाता है ब्रीदिंग पोर्स. और ये जो ब्रीदिंग पोर्स हैं इनका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज में. दे हेल्प्स इन exchange of gases. Next structures are siphillae. These are formed on the lower surface of the thallus, lower side of the thallus, और ये structures भी help करते हैं gaseous exchange में. So on the lower cortex of some foliose lichen again, like sticta, एक lichen है foliose lichen जिसका नाम है sticta, उसमें small depressions develop होते हैं lower surface में, lower cortex में, और इनकी जो appearance होती है there is cup like, inverted cup like, white spots की तरह दिखते हैं हमें naked eye से, and these structures are known as siphillae. Sometimes the pits that formed without any definite borders, उनको कहा जाता है pseudocyphillae. इसमें कोई भी पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं होता है, स्मॉल पिट्स बनते हैं. सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है pseudocyphillae. Pseudo means false cyphillae, and the function is again in aeration, means they helps in gaseous exchange. So both breathing pores and the cyphillae helps in gaseous exchange in case of lichens. So this is the picture which shows the structures. ये जो फर्स्ट पिक्चर है दिस वन, इट शोज द ब्रीदिंग पोर. ये होती है छोटी सी डिप्रेशन इन द अपर कॉर्टेक्स, और यहाँ पे जो ये ब्रीदिंग पोर्स हैं ये हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में. देन दिस सेकंड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द लोअर कॉर्टेक्स. इट इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसका भी फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज में. देन दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. The next specialized structure is cephalodium. ये जो structures होते हैं these are small warty outgrowths on the upper surface of thallus. For example, we have lichen peltigera. इसके outer surface पे upper surface पे outgrowths होती हैं जिसमें कि जिसमें fungal hyphae भी present होते हैं और algal masses भी present होते हैं. So these contain fungal hyphae of the same type as the mother thallus, but the algal elements are always different. So इसमें ये difference है, दोनों ही components होते हैं, algal component भी होंगे elements और fungal components भी होते हैं, but जो fungal component main thallus का है, mother thallus का, वो ही present होता है cephalodium में, but it varies in its algal element. So जो algal element thallus में present है, mother thallus में present है, वो algal element present नहीं होता है cephalodium में. So that varies. So the algal element in case of cephalodia is different from the mother thallus. और ये जो structure है इसका main role रहता है retaining of moisture in lichen thallus. They helps in retaining the moisture. So this is the structure. ये structure हमें naked eye से दिखता है. जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं सो वी विल ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर.
इट कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफे, देन दिस इज़ द एल्गल जोन, और इसमें जो कॉर्टेक्स है इससे आउटग्रोथ जो ये निकलती है, इट हार्वेस्ट और इट कंटेन द ब्लू ग्रीन एल्गी जो वेरी करती है फ्रॉम दिस मदर थैलस। जो मदर थैलस है उसमें डिफरेंट एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और जो सिफलोरिया है उसमें different algal element होते हैं, और the function of this cephaloria is to retain the moisture. Next structures are Ecidia. These are coral-like outgrowths. Coral की तरह outgrowth होती हैं and they are developed on the surface of lichen thallus. Lichen के surface के ऊपर develop होते हैं, और इनका जो function होता है they help in increasing the surface area of lichen for the process of photosynthesis. And they are composed of external cortical layers of fungal hyphae with an internal algal layer. इसमें दोनों ही elements present होते हैं, fungal element as well as algal element. So these are distinguishable from the cephaloria by the fact here the algal component is same as that in the thallus. ये हमने डिस्कस किया था, जो सिफलोरिया होते हैं उसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गल एलिमेंट होता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मदर थैलस. बट इन केस ऑफ इसीडिया both in both structures the algal element is same. So in case of cephaloria, here the algal component is same as that in the mother thallus, whereas in Ecidia, both the components are same, while in case of cephaloria alga is different from that of thallus. So this is the difference. And they are primarily meant for increasing the surface areas, as I have told you. They increase the surface area for photosynthesis, and they also helps in asexual reproduction. So they also behave as reproductive bodies. So this is a picture which shows the structure of this Ecidia. ये आउटग्रोथ होती है अपर सरफेस पे लाइकन के, और कोरल लाइक इसकी अपीयरेंस है. इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है और जो फंगल कंपोनेंट है दोनों ही सेम होते हैं एज प्रेजेंट इन द थैलस. जैसे थैलस में प्रेजेंट है वैसे ही ये इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. वाइल इन केस ऑफ सिफलोरिया जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं सिफलोरिया में वो वेरी करते हैं फ्रॉम द थैलस. दिस इज अगेन द सिमिलर पिक्चर. सो दिस इज द अपर कॉर्टेक्स, दिस इज द एल्गल लेयर. इसमें जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं दे आर सिमिलर इन थैलस एज वेल एज इन दिस इसीडिया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Ecidia and cephaloria. Next structures are Soridia. जो सोरीडिया होते हैं दे आर माइन्यूट राउंडेड सेपरेबल आउटग्रोथ्स फ्रॉम द लाइकन थैलस. माइन्यूट आउटग्रोथ्स हैं जो कि सेपरेट हो जाती हैं लाइकन के थैलस से. दे आर कंपोज्ड ऑफ एल्गल सेल्स एंड क्लेफ्स्ड एंड सराउंडेड बाय द फंगल हाइफे. जो एल्गल सेल है उनको सराउंड करता है फंगल हाइफा बाहर से. And both the fungus and the algal components are same as in the parent thallus. जैसे parent thallus में present होते हैं same वैसे ही algal और fungal component present होते हैं सोरीडिया में. और जो सोरीडिया होते हैं they are formed fairly in large number, बहुत ज़्यादा amount में produce होते हैं on the surface or margins of the lichen thallus. And these are widely disseminated or transferred by wind or rain, and they fall on the suitable substrate. जैसे ये suitable substrate पे fall करते हैं they germinate and give rise to the new thalli. So these are again the structures which helps in asexual reproduction or multiplication. So this is the picture which shows the structure of Soridia. This is the main thallus. इस thallus में बहुत सारे ये जो structures बनते हैं. This is the algal cell. ग्रीन कलर शोज द एल्गल सेल. जो ये एल्गल सेल है इट इज़ सराउंडेड बाय द फंगल हाइफे. चारों तरफ से फंगल हाइफा इसको सराउंड करता है. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंगल हाइफे की और एल्गल सेल की वो सेम होती है एज दैट ऑफ पेरेंट थैलस. जैसे पेरेंट के थैलस में प्रेजेंट है एल्गी और फंजाई का जो हाइफा है सेम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सोरीडिया. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट एंड दे हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस लाइकन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर सोरेलिया. जो फॉलियोज लाइकन हैं और फ्रूटिकोज लाइकन हैं इनमें एंड इन सम क्रस्टोज फॉर्म्स आल्सो. जो ये लाइकन्स हैं जो सोरीडिया होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन मासेस. एक ग्रुप में प्रोड्यूस होते हैं और दैट फॉर्म्स द कॉम्पैक्ट मास, और उस कॉम्पैक्ट मास ऑफ सोरीडिया को कहा जाता है सोरेलिया. सो
They are basically Soridia but present in masses or group, and this structure is known as Sorelia. So this is the picture which shows Soridia. जब ये सोरिडिया प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप में कॉम्पैक्ट मासेस में, देन इट इज नॉन एज सोरिलियम. दिस इज एपोथीशियम. ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर्स, क्योंकि जो इसमें एस्कोमाइसिटीज़ के फंगस जो इसमें प्रेजेंट होता है वो एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर होता है. और हमने डिस्कस किया था जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं उनमें जो परफेक्ट स्टेज स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर एस्कोस्पोर्स, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स. So this is Sorelia. Next is reproduction in lichens. So जो lichens हैं they reproduce both by asexual and sexual means. Asexual methods include fragmentation. जो fragmentation होती है lichen के thallus के, fragment means small pieces में breakdown होता है by death and decay of older portions or by accidental breaking, और जो broken piece है that can give rise to the new thalli. So this is the most common method of asexual reproduction or vegetative reproduction in case of lichen. Next is development of special reproductive structures that we have already discussed. जो most common ones हैं that is Soridia, like Soridia, Isidia, and they also give rise to the new lichens thallus. ये हम discuss कर चुके हैं. Then asexual spore formation. कुछ lichens spores produce करते हैं. Many lichens produces conidia in pycnidia immersed in the thallus. Spores की तरह structures produce करते हैं and these helps in the asexual reproduction. जो conidia होते हैं on being dispersed, जैसे ही वो वहाँ से disperse होंगे they germinate on the suitable substratum under favorable conditions by sending out the hyphal branches in all direction, and when they comes in contact with the suitable algal partner तो फिर ये lichens में convert हो जाते हैं. Any of the hyphal branches on coming with the appropriate algal cell or branches further ultimately producing the lichen thallus that I have already discussed. जैसे ही ये जो fungal branches हैं suitable algal cell के contact में आते हैं then they will give rise to the lichen. As we know lichen is the dual organism made up of fungal and algal component or element, and they are especially known as phycobiont and mycobiont that we have discussed in previous lecture. नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था. द फंगल पार्टनर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो फंगल पार्टनर है लाइकन्स का वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज ऑन द थैलस, लाइक एपोथीशियम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. जो नेचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोलाइकन्स में ये सिमिलर होता है एज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटिना. जो हमने एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स पढ़े हैं फंगस में, वैसे ही ये एस्कोलाइकन्स शो करते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर जो बेसिडियो लाइकन्स हैं वो बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. देन इन एस्कोलाइकन्स, जो एस्कोलाइकन्स हैं इन विच जो फंगल मेंबर है दैट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज़, इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहा जाता है कार्पोगोनियम, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहा जाता है स्पर्मोगोनियम और पिक्निडियम. सो दिस इज द पिक्चर विच शोज स्पर्मोगोनियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन दिस बी पिक्चर दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नॉन एज कार्पोगोनियम. जो स्पर्मोगोनियम है इट डेवलप्स क्लोज टू द कार्पोगोनियम. जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये डेवलप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नज़दीक, और जो कार्पोगोनियम है इट इज़ अ मल्टीसेलुलर एंड इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम. दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कार्पोगोनियम. बेसल पोर्शन को कहते हैं एस्कोगोनियम एंड द अपर इलोंगेटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज ट्राइकोगाइनी. ये टर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. जो ट्राइकोगाइनी है इसका फंक्शन होता है to receive the spermatia or male gamete or male cell. So this is the picture which shows the carpogonium.
जो कार्पोगोनियम है दो पोर्शन से मिलकर बना होता है. द अपर पोर्शन इज नोन एज ट्राइकोगाइनी. इसका फंक्शन होता है टू रिसीव द स्पर्मेशिया और मेल गैमेट और मेल सेल. एंड द बेसल पोर्शन, दिस कॉइल्ड पोर्शन, इज नोन एज एस्कोगोनियम. इसको कहा जाता है एस्कोगोनियम. जो एस्कोगोनियम है इट रिमेन्स एम्बेडेड इन द एल्गल जोन. ये एल्गल जोन में एम्बेडेड होता है. जो थैलस है लाइकन का उसके एल्गल जोन में एम्बेडेड रहता है दिस बेसल पोर्शन ऑफ कार्पोगोनियम. बट द ट्राइकोगाइनी प्रोजेक्ट्स आउट एंड बियॉन्ड द अपर कॉर्टेक्स. जो ट्राइकोगाइनी है वो अपर कॉर्टेक्स से भी बाहर निकलता है. जो स्पर्मोगोनियम है द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये होता है फ्लास्क शेप्ड और ये डेवलप करता है स्पर्मेशिया विच आर मेल सेल्स और मेल गैमेट फ्रॉम द इनर लेयर. और जो स्पर्मेशिया है दे बिहेव एज मेल गैमेट दैट आई हैव डिस्कस्ड. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस पिकनीडियम. इसके अंदर ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बनते हैं मेल गैमेट जिनको कहा जाता है spermatia. And the spermatia, they are formed inside this flask shaped structure from the inner layer that we can see in this picture. और जो spermatium है after liberating from the spermogonium, जैसे ये male gametes यहाँ से liberate होते हैं, they gets attached to the trichogyny at the sticky projected parts. So यहाँ से ये निकलते हैं spermatia और ये attach हो जाते हैं in the sticky end of trichogyny. Then it results in the process which is known as fertilization, जिसमें कि स्पर्मेशिया का न्यूक्लियाई फ्यूज होता है विद न्यूक्लियाई ऑफ एस्कोगोनियम. सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे एस्कोगोनियम का जो ट्राइकोगाइनी वाला पोर्शन है, कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइनी वाला पोर्शन है, जहाँ पे स्पर्मेशिया अटैच होता है ट्राइकोगाइनी में, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे जो वॉल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड दे एक्सचेंज द मटेरियल. और जो न्यूक्लियस है स्पर्मेशियम का मेल गैमेट का दैट माइग्रेट्स इनटू द कार्पोगोनियम. वो कार्पोगोनियम में माइग्रेट हो जाता है और वहाँ पे फ्यूज़ करता है विद द न्यूक्लियाई ऑफ दिस कार्पोगोनियम और जिसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एग, द फीमेल गैमेट. So then after this mixing, this process is known as fertilization. After fertilization there are a lot of changes which occur in this structure, so that we'll discuss. सबसे पहले जैसे ही fertilization होती है जो ट्राइकोगाइनी है दैट डिसइंटीग्रेट्स, ट्राइकोगाइनी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और जो मैनिंग एस्कोजिनस हाइफे, बहुत सारे एस्कोजिनस हाइफे डेवलप हो जाते हैं बेसल रीजन ऑफ फर्टिलाइज एस्कोगोनियम. जो एस्कोगोनियम था उसके बेसल पोर्शन से बहुत सारे हाइफे राइज होते हैं जिनको कहा जाता है एस्कोजिनस हाइफे. एट द टिप ऑफ दिस एस्कोजिनस हाइफे, जो ये एस्कोजिनस हाइफे की टिप्स होंगी वहाँ पे बनेंगे हमारे पास सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको कहा जाता है एस्कस. एंड द स्पोर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज ascospore. These are the perfect stage spore. So formation of SI. SI is the plural word and ascus is the singular word. These are sac-like structures जिसके अंदर ascospores बनते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं at the ends of ascogenous hyphae. All the structures like developing SI, ascogenous hyphae और ascogonium, ये जो तीनों structures हैं after fertilization, they are surrounded by स्टीराइल हाइफे. ये चारों तरफ से स्टीराइल हाइफे, जो स्टीराइल हाइफे हैं वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को सराउंड करते हैं एंड दे गिव राइज टू द फ्रूटिंग बॉडीज. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी विच इज़ आइदर एपोथीशियम. उस फ्रूटिंग बॉडी को या तो एपोथीशियम कहते हैं या फिर उसको कहते हैं पेरीथीशियम. दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. So first we will discuss about apothecium. जो ये फ्रूटिंग बॉडी है ये प्रेजेंट होती है स्कोमाइसिटीज़ में, फंजाई में प्रोड्यूस होती है, बट लाइकन्स का जो फंगल पार्टनर है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. सो एस्कोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ एपोथीशियम. सो लाइकन के थैलस में भी ये प्रोड्यूस होती है. सो इट इज़ राउंड एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर. ये राउंड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है
and we can see it in the upcoming picture. If the apothecium consists of only fungal component, अगर इस fruiting body में सिर्फ fungal component present है, it is known as Lesidian type of fruiting body. इसको कहा जाता है Lesidian type of fruiting body, as in case of lichens like Lesidia, इसीलिए इसको बोलते हैं Lesidian type. then Cladonia and Gyrophora, जो ये lichens हैं इनमें इस तरह का fruiting body बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ fungal component present होता है. and if it consists of both algal component and the fungal components, अगर दोनों ही component present है, then it is known as lichenorine type of fruiting body. Lichenorine type of fruiting body, and it is present in Lichenora and Parmelia. So these are the examples जिसमें इस तरह की fruiting bodies present होती है. और ये जो differentiation है, it is based on the presence and absence of both the partners. अगर fungal component present है, then it is Lecidian type. अगर दोनों ही fungal as well as algal partner present है, then that is Lichenorine type. So this is the picture that we can see with naked eye. This is the real picture. और ये जो disc like structures हैं, cup shaped structures हैं, इनको कहा जाता है apothecium. ये हमें naked eye से दिखता है. अगर हम इसका vertical section देखें काट के माइक्रोस्कोप के नीचे, then we will see this cup like structure. ये cup की तरह structure दिखाई देता है हमें इसमें. And this structure is differentiated into two parts. इसमें होता है एक upper disc part, then second part is the margin part. जो disc part है, it contains the fertile portion, और इस fertile portion को कहा जाता है hymeneum और theecium. और इसके नीचे present होता है the sterile portion which is made up of fungal hyphae, जिसको कहा जाता है hypothecium और subhymenium. और जो hymeneum layer है, this is the fertile layer. It consists of ascus. इसमें ascus present होते हैं, और इसमें साथ में present होते हैं sterile filament जिनको कहा जाता है paraphysis. And above this hymeneum there is another layer which is again sterile layer, इसको कहा जाता है epithecium. Then structure of apothecium consists of two parts. एक है disc part, दूसरा है इसका margin, that we will discuss. जो disc portion है, it is the fertile portion. Fertile portion है ये, इसमें closely packed cells होते हैं. Their packing is just similar to that of palisade like. जैसे mesophil के cells packed होते हैं palisade like manner में, वैसे ही यहाँ पे cells arranged होते हैं. And it contains the SI and sterile hair-like structures, hyphae जिसको कहा जाता है paraphysis, that I have already discussed. Each ascus contain 8 ascospores, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. SI और जो paraphysis हैं, they are closely packed to form the fertile layer, जिसको कहा जाता है hymeneum और theecium. इस fertile layer को कहा जाता है hymeneum और theecium. Beneath this layer there is a region of जो बना होता है dense mass of sterile hyphae से, fungal component से, and that is sterile, and it is known as subhymenium और hypothecium भी इसी को कहा जाता है. So this is the picture of this apothecium. So इसमें जो ये वाला region है, this one, it is the disc portion, और ये बना होता है फर्टाइल पोर्शन से. ये फर्टाइल पोर्शन होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं ये एस्कस. अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. दिस वन, दिस इज नॉन एज एस्कस. इसके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, एंड इट कंटेन्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. इसके साथ जो फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है पैराफाइसिस. एंड दिस लेयर इज नॉन एज थीशियम और हाइमेनियम. इसके नीचे वाली जो लेयर है, विच इज द स्टेराइल लेयर, दिस इज नॉन एज सब हाइमेनियम और hypothecium, and this layer is known as hymeneum and theecium. Then margins of apothecium, this is the second part of this apothecium. ये वो वाला पोर्शन है जो सराउंड करता है डिस्क को एंड फॉर्मिंग द एज ऑफ एपोथीशियम, जो एपोथीशियम का एज बनाता है. ये भी दो तरह का होता है. लेसिडियन टाइप हैज़ ओनली प्रॉपर मार्जिन कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफे अलोन है. ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंगल हाइफे प्रेजेंट होंगे. दैट विल विद द लेसिडियन मार्जिन. और लिकेनोराइन टाइप में क्या होता है, सेकंड, इसमें एक सेकंड थिकन मार्जिन होता है विच सराउंड द प्रॉपर मार्जिन.
जो प्रॉपर मार्जिन है उसको एक और मार्जिन सराउंड करता है, एंड जो ये वाला सेकंड मार्जिन है इट इज़ मेड अप ऑफ द ग्रोथ ऑफ थैलस, जो थैलस है उसकी ग्रोथ से बनता है सेकंड मार्जिन, एंड हैव बोथ द फंगल एज वेल एज एल्गल कंपोनेंट। इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फंगल एज वेल एज एल्गल कंपोनेंट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स। जो एस्कोस्पोर्स हैं वो बनते कैसे हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी हैव डिस्कस दैट देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजिनस हाइफे। वो जो एस्कोजिनस हाइफे हैं दीज आर नोन एज यंग एस्कस मदर सेल्स एंड दे कंटेन डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेशिया का न्यूक्लियाई और एग का न्यूक्लियाई। तो उसके यूनियन से बनता है हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन। पहला जो डिवीजन होता है मियोटिक डिवीजन है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और जो ये 4 न्यूक्लियाई बनते हैं दे आर फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टोटल 8 न्यूक्लियाई। और ये जो 8 न्यूक्लियाई बनते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म। उन आठों के आठों न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मास एक्यूमुलेट होता है एंड दे आर डिफरेंशिएटेड और मेटामॉर्फोस्ड इनटू एस्कोस्पोर्स। सो दैट्स वाई जो एस्कोस्पोर्स हैं दे आर 8 इन नंबर। तो 8 एस्कोस्पोर बनते हैं एक एस्कस के अंदर। बिफोर लिब्रेशन ऑफ दिस एस्कोस्पोर्स, बहुत सारी जो लाइकन्स में ये जो एस्कोस्पोर्स हैं लिब्रेशन से पहले दे डिवाइड एंड दे फॉर्म टू मैनी सेल्ड स्ट्रक्चर्स बिफोर लिब्रेशन फ्रॉम एस्कस। एस्कस से निकलने से पहले ये इसको स्पोर्स डिवाइड करते हैं एस्कस के अंदर इन मैनी लाइकन्स, और वो हो सकते हैं 2 सेल्ड और मोर देन 2 सेल्ड। एंड द डेहिसेंस ऑफ एसआई, जो एसआई हैं उनकी जो डेहिसेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस। जब वेदर कंडीशन वेट होती हैं देन दे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, और जो एसआई हैं उनसे एस्कोस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं। So this is the picture which shows this apothecium that we have already discussed. इसके इनिशियली जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एस्कोजिनस हाइफे में। वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई डिवाइड करता है मियोटिकली एंड माइटोटिकली एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज 8 एस्कोस्पोर्स इनसाइड दिस structure which is known as ascus. The next is germination of ascospores. जो एस्कोस्पोर्स हैं एज आई हैव डिस्कस्ड कुछ एक लाइकन्स में एस्कोस्पोर लिब्रेशन से पहले ही डिवाइड होते हैं टू फॉर्म 2 और मोर सेल्ड स्टेजेस, और उसके बाद ये लिबरेट होते हैं। सो एस्कोस्पोर्स में भी सिंपल मीन सिंगल सेल्ड और सेप्टेट हो सकते हैं, और दे आर लाइट इन वेट, लाइट वेट के होते हैं। सो दे आर ईजली कैरिड आउट बाय विंड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो विंड इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कैरी करती है एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम, जैसे ही ये सूटेबल सबस्ट्रेट पे ग्रो कर सबस्ट्रेटम पे फॉल करते हैं दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस द फंगल हाइफे। सो फंगल हाइफे ये प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन दिस हाइफे ग्रोज इनटू लाइकन थैलस इफ they comes in contact with the appropriate algal component। अगर इनको appropriate compatible algal component मिलता है तभी ये कन्वर्ट होते हैं लाइकन्स में। So this is how the ascospores germinate. Next type of fruiting body is perithecia। जो perithecia होते हैं, this is the plural word, perithecium is the singular word। It is much smaller in size as compared to apothecium। apothecium से smaller size होता है इसका, और ये अपीयर होता है हमें डॉट की तरह, जैसे डॉट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं डॉट्स की तरह, ये हमें नेकेड आइज से अपीयर होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ लाइकन्स थैलस। इन वर्टिकल सेक्शन ये हमें दिखाई देता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर ये जो स्ट्रक्चर है वर्टिकल सेक्शन में हमें ये फ्लास्क शेप दिखता है, और इट इज़ बाउंडेड बाय डार्क कलर वॉल। इसकी जो वॉल होती है डार्क कलर की होती है बाहर से,
and cavity is lined with Si. So this inner cavity that we can see here, it is lined by Si. So इसमें बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट होते हैं, और जो एस्कस हैं दे कंटेन द एस्कोस्पोर्स विच आर 8 इन नंबर. इसमें जो पैराफाइसिस होते हैं हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं. सो दे आर आइदर लेस इन नंबर, बहुत ही कम होंगे, और आइदर दे आर एब्सेंट. The paraphyses are either few in number or they are lacking. It opens at the surface through a small pore, जिसको कहा जाता है ostiole. इसकी जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है ostiole. यहाँ से रिलीज होते हैं ascospores. So this is the perithecia, second type of floating body found in ascolichens. Next one is the very important topic, that is economic importance of lichens. Lichens plays a very important role in the ecosystem. Firstly, they are the pioneers of succession. Pioneer means founder. So ये जो organisms हैं, they are founder of succession in the bare areas. जो bare areas है, barren land है या rock surfaces है, वहाँ पे जो सबसे पहली community establish होती है, that is the lichens. So in this picture we can see here, जो ये रॉक सरफेस है इसके ऊपर इनिशियली लाइकन्स सेटल डाउन होते हैं. लाइकन्स के स्पोर्स यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं. आफ्टर जर्मिनेशन दे रिलीज सम एसिडिक सब्सटेंसेस इनटू द रॉक सरफेस. एसिडिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जिससे ये रॉक का जो सरफेस है वो इरोड होता है, डिसइंटीग्रेट होता है. दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, स्मॉल कैविटीज़. और ये स्मॉल कैविटीज़ हैं, दे आर फिल्ड विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जैसे ये फिल्ड होती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, फिर ये जो हैबिटेट है, ये जो सरफेस है, ये लाइकन्स के लिए सूटेबल नहीं रहता है. देन इट इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड कम्युनिटी, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. दीज आर द मॉसेस और ग्रासेस. जो ब्रायोफाइट्स हैं वो फिर इसके ऊपर सेटल डाउन होते हैं. दैट इज़ द नेक्स्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन. So this is the early or pioneer colonizer of the barren, dry, naked rock, mountain and new terrains. जो भी barren land है जहाँ पे कोई भी previous growth नहीं होती किसी भी vegetation की, वहाँ पे ये firstly grow करते हैं और ये बनाते हैं उस habitat को favorable for the growth of next community. And they secrete some acids and erode the rock surfaces and produces minute crevices, छोटी छोटी crevices और cavities बनाते हैं जहाँ पे organic matter accumulate होता है. And make suitable habitat for the next community like mosses or grasses. फिर वहाँ पे next community that we can see in this picture, mosses or grasses grow करते हैं. So this is the pioneer or founder member in the case of succession. Next, lichens as food. So बहुत सारे lichens है जिसको as a food use किया जाता है. In tundra are the polar region जहाँ पे snowfall रहता है 12 months. So there is a lichen named as Cladonia rangifera, commonly known as reindeer moss कहा जाता है. Moss वैसे bryophyte होता है. This is the misnomer term. So Cladonia rangifera, it acts as a food for reindeer, caribou, musk, ox, etc. तो बहुत सारे जो animals हैं वो इस लाइकन के ऊपर फीड करते हैं क्योंकि टुंड्रा में और कोई वेजिटेशन होती नहीं है. सो जो ये एनिमल्स हैं दे फीड ऑन दीज लाइकन. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्लेडोनिया रेंजीफेरा एंड दिस इज़ द रेंडियर विच इज़ ईटिंग द लाइकन. सो ये फूड की तरह एक्ट करता है रेंडियर के लिए, मैनी अदर एनिमल्स आल्सो. द नेक्स्ट वी हैव lichen named as Citraria icelandica, commonly known as Iceland moss. और ये भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है from the people of Iceland and Sweden. इसको यूज़ किया जाता है फूड की तरह. Citraria icelandica, commonly known as Iceland moss. So this is the picture of Iceland moss which is known as Citraria icelandica. Then next there is another lichen named as Lichenora esculenta. ये भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है एंड आल्सो नोन एज ब्रेड ऑफ हेवन बाय ज्यूज़. जो ज्यूज़ हैं वो इसको ब्रेड ऑफ हेवन भी कहते हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर, ब्रेड मेड फ्रॉम दिस lichen. Then there is a next lichen which is known as Parmelia,
commonly known as rock flower, बहुत ही beautiful lichen present होता है rock surfaces पे, and it is also used as the table delicacy or food items. In Tamil Nadu it is known as rathapu. Rathapu भी कहा जाता है इसको तमिलनाडु में. So this is the picture of Parmelia, which is commonly observed in the hilly region. यहाँ पे hilly areas में हम इसको commonly observe करते हैं. Parmelia, commonly known as rock flower. Then there is another lichen which is known as Endocarpon miniatum. It is known as stone mushroom, और इसको as a vegetable use किया जाता है जापान में. So these are some lichens which are used as food in many parts of the world and by many animals as well as humans as a food. The next, there are some lichens which from which we obtain certain dyes. So there is one famous dye which is known as oricin or orchil. ये बहुत ही famous dye है. It is also used as a biological stain, और ये obtain किया जाता है एक lichen से जिसका नाम है Rossella tinctoria. So it is obtained from this lichen Rossella tinctoria, and this is the picture of this lichen Rossella tinctoria. And this is the fiber which is stained by using this dye. तो ये जो fibers हैं इसको stain किया जाता है इस dye से. And this lichen, जो ये lichen है, it is also source of litmus. Litmus एक chemical है जिसको हम chemistry में use करते हैं to know the pH of any substance. जो pH measure करने के लिए हम use करते हैं dye that is known as litmus dye. So it is also obtained from this lichen which is known as Rossella tinctoria. The next, there are perfumes. बहुत सारे perfumes बनते हैं lichen से. So scented incense is got from the species of Ramalina. Ramalina का एक species जो है, और Ivernia. जो ये lichens हैं, they are used for the preparation of various perfumes. So this is the picture of Ramalina, and this is the picture of Ivernia. So delicate perfume is got from the, there is some other lichen genus, कुछ और lichens हैं जिनसे कि बहुत ही precious perfumes बनाए जाते हैं, like Lobelia pulmonaria and Ivernia prunestri. So इनसे भी perfumes बनते हैं. This is the species of Ivernia. Then this Ramalina and Ivernia, Ramalina prunestri and Ivernia, they are also used for the preparation of हवन सामग्री. जो हवन सामग्री है उसको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है. Next, lichens used as medicines. So there are many lichens from which we obtain acidic substances, और जो acidic substances है, they have antibiotic properties. For example, we have arsenic acid which is obtained from Arsenia and Cladonia, और इसका जो properties हैं, they are antibiotic in its properties and they are used as an antibiotic. The next, we have other lichen, that is Peltigera canina, commonly known as dog lichen, and it is used as a medicine for hydrophobia. जो hydrophobia है उसकी medicine ancient time में इससे बनाई जाती थी. Next, we have Lobelia pulmonaria, commonly known as lungwort, and it is used for the treatment of various lung diseases. Next is Parmelia. It is used for the preparation of medicine against the disease epilepsy. जो epilepsy है उसकी treatment के लिए इससे medicine बनाई जाती है. And there are many Asnia species which are used to treat the urinary infections. जो urinary infections है, urinary diseases हैं, उनको cure करने के लिए Asnia की बहुत सारी species को use किया जाता है. Then there are many lichens which are used for the preparation of ointments and burns, and ointments for burns and wounds. जो कुछ एक medicines बनती हैं burns को care करने के लिए और injuries को care करने के लिए. So there are various lichens which are used for the preparation of ointments for burns and wounds. The next, air pollution. So lichens are excellent bioindicators of air pollution. So lichens act as bioindicators for the sulfur pollution, especially of a particular area. अगर किसी एरिया पे lichens की population decrease हो रही है, so that indicates that area's air is polluted with
सल्फर डाइऑक्साइड. सो किसी एरिया में अगर लाइकन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो दैट इंडिकेट्स that air is polluted with the sulfur dioxide. So it is the natural bioindicator of sulfur pollution. The next, forest fire. जो बहुत सारी लाइकन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर इन हॉट सीजन लाइक असनिया. ये फायर को ईजिली कैच करती है और जिससे कि फॉरेस्ट में फायर्स होती हैं. ये फायर को ईजिली कैच करता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ असनिया एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. जैसे ही ये फायर के कांटेक्ट में आता है, ये बर्न करता है और इसके साथ ही फॉरेस्ट में फायर क्रिएट करता है. सो these some lichens are also responsible for forest fire. So this is the picture of asnia. The next, they also damage some buildings or monuments in humid areas. जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में, वहाँ पे जो लाइकन्स हैं वो ग्रो करती हैं विंडो पैन्स पे और मार्बल पे, सीमेंट पे, और डैमेज करती है बिल्डिंग्स को बाय इट्स इरोडिंग एक्टिविटी. एज आई हैव डिस्कस्ड, ये सक्रीट करते हैं सम एसिडिक सब्सटेंसेस, जिससे कि जो मार्बल सरफेसेस है, विंडो पैन सरफेसेस हैं, वो इरोड हो जाते हैं एंड दे आर डैमेज्ड बाय दिस स्क्रिशन फ्रॉम दिस लाइकन्स. सो दिस द पिक्चर विच शोज द ग्रोथ ऑफ लाइकन, और ये डैमेज करता है बिल्डिंग्स को. Then they also grow on some economically important trees or plants. Trees और plants पे भी grow करते हैं. हम इसको hilly areas में commonly observe करते हैं. Due to growth of these lichens on the trees, they have some harmful effects on the growth of plants. ये trees की growth को affect करते हैं. So this is the picture which shows the growth of lichen on the tree surface. So this is all about today's discussion. Hope you will learn from this. And if you have any questions, queries, and any suggestion, you can give it in the comment section. Thank you. Have a great day.